Namaskar students. Today a very important topic of chemistry, electronic configuration. What is meant by electronic configuration? Distribution of electron in different atomic orbitals. Already we have discussed all the electron in an atom not have same amount of energy. The electron present in different cell have different energy. And not only different cell, the electron present in same cell not have same energy. They are also further divided into subcell, and each subcell is further divided into orbital. And electron present in the orbital. And in the orbital maximum number of electron is 2 and that have opposite spin. So by taking these four principles in the mind, that is Avogadro principle, feeling of electron in increasing order of their energy. Then n plus L rule, tell about the energy of orbital. More will be the n plus L value, more will be the energy. Same n plus L value, then see the n. And more will be the n, more will be the energy. In case of degenerate orbital, first they are singly occupied, having parallel spin, then pairing will take place. And in a orbital, maximum number of electrons are 2 and they must have opposite spin. These are the four principles: n plus L principle, Avogadro principle, Pauli's principle, Hund's principle. By considering all of these four principles, we start electronic configuration. First say hydrogen. First you write the sequence of atomic orbital. That is say 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p. Before 4d, we take 4s. Why? Because the energy is less. 3d, then 4p, then 5s. Before 4d, we take 5s. 4d. After 4d, we take 6s. 6s. 5f बचा हुआ है अभी, 5d भी बचा हुआ है. Then 5d, then 4f. पहले इलेक्ट्रॉन 6s में जा रहा है, फिर 5d में जा रहा है, फिर 4f में जा रहा है. Then 7s. Then 4f के बाद 7s. Then it go to the 6d. Then 5f and so on. This is the sequence according to n plus L rule. कहीं कोई confusion है तो apply n plus L rule. Then say hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Symbol of element you should know. Then atomic number. Atomic number means number of proton in the nucleus of the atom, and number of electron and proton are equal. तो total atomic number जो होगा वही क्या होगा उसका number of electron. Hydrogen है atomic number 1, 5, 6, 8. Atomic number 8 का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन 8 है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे. इसका मतलब आपको 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करना है. देन 1, दैट इज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज 1s1. दिस इज 1s1. अगर आप सीक्वेंस में बॉक्स फॉर्म में लिखोगे तो दिस इज 1s1. देन 1s2. For helium there are total electron is 2, और पहली सेल में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं 2, तो 1s2. This is its box representation 1s2, and these two electron must have opposite spin. Same spin उनकी नहीं होनी चाहिए. They should have opposite spin. Then 1s2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 का.
3 का 1s2 1s2 भर गया, देन गो टू 2s1। बॉक्स की बात करते हो 1s2 2s1, 2 के किस में, 2px में, py में और 2pz में, किसी में भी, किसी एक में भी तीनों की एनर्जी बराबर है, दे आर डिजनरेट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2s1, why we write 2px 2py 2pz, this is 2s not 2p, 2s1 have one electron only, either clockwise or 4, 1s2 2s2, total is 4, 4 means 2 in 1s and 2 is 2s, this is 1s and this is 2s. This also gives the number of unpaired electron. Number of unpaired electron is 1 nil 1 nil. Then how we distribute 5 electron? 1s2 2s2, 1s भर गया 2s भर गया, then go to 2p1 2p1, तो 1s2 2s also 2, and out of 2p 2px 2py and 2pz, one carry one electron, either it is any one, maybe clockwise or maybe anti-clockwise. Then 6 1s2 2s2 2p2 2px 2py and 2pz, they are degenerate. Out of that 3 2 electron is there, either in x y or z, किसी में ले लीजिए, इक्विवेलेंट है। ये जो तीसरा है ये 0 रहेगा। Pairing will not take place, say this is 1s2 2s2 2p2, pairing will not take place until they are not singly occupied and their parallel, they should have parallel spin. Then 7 1s2 2s2 2px 2py and 2pz, ये अलग अलग हम इसलिए लिख रहे हैं, either you write 2p3, अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं कि we should know all these 3 electrons present in different orbital. This is say 1s2, this is 2s2 2p3, they are singly occupied first. After that singly occupation, now the pairing will start in the next electron, that we say differentiate electron, the electron by which they are differ. Say these have 5 electron and 6 and this is 7, तो जो सातवां जो इलेक्ट्रॉन है उससे डिफर कर रहे हैं. Then 8, that is 1s2 2s2 2p4 x y z तीनों को कंबाइन लिख दिया तो हमने लिख दिया 2p4. इसका मतलब नाउ पेयरिंग विल स्टार्ट 1s2 2s2 and 2p4. First they are singly occupied. px py pz पहले एक जाएगा. Now pairing will take place. किसी एक में भी चला जाएगा. Pairing होगी and that should have opposite spin. इनका अगर हम से ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं. Oxygen, it is 8 electron. So we must write the distribution of 8 electron. That is 1s2 2s2 2p4. बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? 1s2 2s2 2p4 2p4 having 4 electron, they are 2 are singly occupied, 1 pair. इसी को आपने पहले किया हुआ है, लेकिन पहले आप कैसे करते थे? 2 and 6 KL up to 10th, पहले सेल में 2, दूसरे में 6. जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते थे 2 and 6, पहली सेल में 2 और दूसरी में 6. अभी भी वैसा ही है, पहली सेल में 2 और दूसरी में 6. एक कॉन्सेप्ट सिर्फ हमने डाल दिया. पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन करते थे सेल वाइज, अब हम कर रहे हैं सब सेल का भी कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया.
आफ्टर समरफील्ड ऑब्जर्वेशन और क्वांटम मॉडल सेल इज डिवाइडेड इनटू सब सेल। तो अभी हम टोटल तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, इसी को अगर हम ऑक्सीजन का अगर हम न्यूक्लियस करते हैं तो दिस इज 8 and 16 means nucleus have 8 proton and 8 neutron because atomic mass of oxygen is 16, out of that 8 are proton, so remaining 8 are neutron, तो total 16 AMU ऑक्सीजन का मास है। मास ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू न्यूक्लियस, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने नेग्लिजिबल ले रखा है। देन फर्स्ट सेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हम करते थे अप टू 10th, 2 and 6, but now the 6 are also further taken because all the electron, these 6 electrons not have same energy। इसका मतलब ये भी सब सेल में बटे, उनको भी हमने 2 को 2s में ले लिया और 4 को 2 के p में ले लिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 10th हमने सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, अब हम उसको सब सेल वाइज और एनर्जी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिस इज अप टू ऑक्सीजन। देन atomic number for element and electronic configuration। atomic number 8 तक आ गया, 9 10 11 12 13 15 16 17 18 और 19 और 20। क्या किया हमने? दिस एलिमेंट इज फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम अप टू एटॉमिक नंबर 20। थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेंगे हम बॉक्स की फॉर्म में, समझ गए हो गया हाउ वी राइट इन द बॉक्स फॉर्म। दिस इज 1s2 2s2 2p5, total should be 9। we should know how many maximum number of electron in a orbital, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। s सबसेल में कितने? 2, p 6, d 10, f 14। क्यों? नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 3 5 7 और 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, so 7 orbital may be maximum can be occupied by f is 14, maximum 14 हो सकता है, कम कितने भी हो। तो 9 का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, तो 9 मीन्स 2 2 and 5, जिसको हम लिखते थे 2 and 7। then 10 1s2 2s2 2p6 2p6 2 and 8 2p6। this means up to here we filled, पहला सेल भर गया, दूसरा भी भर गया, sp और pb। now come to the next, जब 2p भर गया तो किसमें जाओगे? 3 में। 3 का कौन सा सब सेल जिसकी एनर्जी सबसे कम है? 3 में s भी है, 3 में p भी है, 3 में d भी है, तो पहले किसमें जाओगे? जिसकी एनर्जी कम है। कम किसकी है? s की, तो 3s। तो नाउ लेट्स स्टार्ट 1s, और हम इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट करने के लिए क्या कर लेते हैं? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन and this is a stable electronic configuration because it have completely filled orbital। तो हम सोडियम के लिए लिखेंगे 11 का डिस्ट्रीब्यूशन करें, 1s2 2s 2 2p6, 10 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देन 11वां कहां जाएगा? 11वां जाएगा 3s 1। इसको हम शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन, और ये भी नियोन है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं नियोन, यानी कि सेम एज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। कितने का? 10, यानी कि फर्स्ट 10 का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसा नियोन में है, और 11वां हमने लिख दिया 3s 1।
ये जो लास्ट सेल है इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। सेल कोई भी न्यूक्लियस हो गया और ये अलग अलग सेल हो गए। टोटल हम कह रहे हैं, मान लिया n नंबर ऑफ सेल है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 से स्टार्ट होगा, लास्ट में कौन सा होगा, n। वैसे अभी तक n की वैल्यू 7 हो सकती है मैक्सिमम। तो ये जो n सेल है इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस। नेक्स्ट को n-1, n-2, तो n को बोलते हैं वैलेंस लास्ट, n-1 सेकेंड लास्ट, पैलेंटीमेट सेल, n-2 थर्ड लास्ट, एंटी पैलेंटीमेट सेल, वैलेंस सेल। तो नियोन का तो सेम है और वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन अलग है। ऐसे यहां हीलियम को लिख सकते थे क्योंकि हीलियम में पहला सेल कंप्लीट है। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, लिथियम को लिख सकते थे हम हीलियम, यानी हीलियम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2 and 2s1। शॉर्ट में लिखने के लिए है, से फॉर मैग्नीशियम वी शुड डिस्ट्रीब्यूट 12 इलेक्ट्रॉन। 12 मीन्स 1s2, 2s2, 2p6, 10, then 3s2। वैलेंस सेल को तो आपको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, कम से कम उस सेल को आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना जो अभी प्रोग्रेस में है, यानी कि जो भर रहा है, पार्शियली फिल्ड है या फिर लास्ट सेल है। पार्शियली फिल्ड को या लास्ट सेल को तो लिखना ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, नियोन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 and 3s2 वैलेंस सेल। देन दिस इज से सोल्ड नियोन a distribution of 10 and 3s2, 3p1. Again in p, it may be px, py or pz. Then neon 3s2, 3p2. Total is 14. Neon 10 and 4, 14. Then neon 10 and 3s2, 3p3. Then neon 10, 3s2, 3p4, neon 4, 10, 3s2, 3p5, then neon 10, 3s2, 3p6। थर्ड सेल तो कंप्लीट नहीं भरा है, लेकिन थर्ड एस और 3p भर गए। नाउ आफ्टर 3p, नॉर्मली हम सोचते हैं कि अभी थर्ड सेल बचा हुआ है, थर्ड का एस भर गया, थर्ड का p भर गया, लेकिन थर्ड डी अभी खाली है। थर्ड डी खाली है, लेकिन थर्ड डी से पहले कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s में। दिस इज ड्यू टू देयर लेस एनर्जी। एनर्जी कम क्यों है, n+l वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उस रूम में। तो जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड डी में नहीं जाएगा, वो पहले 4s में जाएगा। इस बात का 18 तक ठीक है, 18 तक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, पहले पहला सेल भरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरे में। कह सकते हैं हम ये बात सेल वाइज, लेकिन ओवरऑल हम सेल वाइज नहीं कहते, सब सेल वाइज कहते हैं। 3s, 3p, 3d में जाने से पहले 4s। तो दिस इज नियोन एंड 3s, 2, 3p6, 4s1, 4s1। और कैल्शियम में आपका लास्ट हो जाएगा 4s2। 18 तक तो वही रहेगा जो आर्गोन का है। ये यहां तक 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले भी कर ली थी, जिसमें आप सेल वाइज भी कर लेते हो। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो आप लिख देते हो, जैसे 10 तो ये है, तो 2, 8 और ये 5। फास्फोरस 15 का डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप ऐसे करते थे, 20 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे, 2, 8, 8, 2, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में है ये 1s2, दैट इज 2, 2s, 2, 2p6, that is 8, then 3s, 2, 3p6, that is also 8, and this is 3, not 3, 4s। सेल के बजाय हम सब सेल वाइज लिख रहे हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू
20 up to 20. Then after 20 तक का डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 18, नो प्रॉब्लम एंड नो एनी एक्सेप्शन इज देयर. सीधा सीधा रूल फॉलो हो रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. हमें सेल वाइज भी लगभग है 18 तक, तो सेल वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. बट रियली वी शुड रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सब सेल, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन इन ए सेल डोंट हैव सेम एनर्जी. सेम एनर्जी उनकी होती तो स्प्लिटिंग इतना स्पेक्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता. देन एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30. Then एलिमेंट आपका है सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. ये आपके 10 एलिमेंट है. सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. इसमें आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलरेडी फॉर आर्गन वी हैव 18 डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. This is the distribution of 18 electron in argon, which is a stable distribution. तो सेकेंडियम में वैसे तो हमें 21 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और 21 के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. And you know this is the distribution of 18, same as of argon. 19वां इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 4s में, तो 4s 2 देन 3d1. कई बार हम इसको 3d को पहले लिख देते हैं, 4s को बाद में. कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है. 3d1, 4s 2. हमें तो ये देखना है कि 18 तो वैसे है जैसे आर्गन में थे, एक 3d में जा रहा है, एक 4s में जा रहा है. तो आप इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो? Argon means a distribution of 18 and 3d1, 4s. In some cases it is written like this, 4s2, 3d1. कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. बाकी हम ऐसे लिखे तो वो सेल वाइज हो जाएगा, बाकी फिलिंग एनर्जी वाइज ही होगी. लिखने के लिए आप कैसे लिख दें. तो दिस इज फॉर 21 सेकेंडियम. देन व्हाट इज फॉर 22? आर्गन 18 में मैंने लिख रहा, अंडरस्टूड है, इट इज फॉर 18. देन 4s2, 3d2. 19वां 20वां 4s में गया, फिर 3d2. 3d में कितने जा सकते हैं? 10. देन आर्गन 4s2, 3d3. आर्गन 4s2, 3d4. आर्गन 4s2, 3d5. आर्गन 4s2, 3d6. आर्गन 4s2, 3d7. आर्गन 4s2, 3d8. आर्गन 4s2, 3d9. आर्गन 4s2, 3d10. और डी में मैक्सिमम 10 ही आ सकते हैं. 10 आ गए. कंटिन्यू 18 तक आर्गन में गए, 19वां 20वां 4s में गया, और फिर D1 से लेके और D10 तक इसमें आ गए. लेकिन इसमें जब आप एक्सेप्शन देखोगे, देन हियर वन एक्सेप्शन इज देयर. दिस इज 4s2, 3d5 के बजाय 4s1, 3d5. एक्चुअल इज दिस. ये होना चाहिए था हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस. जो हम इनके मैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, इनके मैग्नेटिज्म से निकालते हैं, या जो इनके कंपाउंड बनते हैं अलग अलग, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पता चलता है कि एक्चुअली डी में 4 नहीं है, डी में 5 है, और एस में 2 नहीं है, 1 है. एक यहाँ पे
हमारी रेगुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4:3D9, लेकिन एक्चुअल में कॉपर क्या है, कॉपर है आर्गन 4s1:3D10। आप अभी तक जो सीक्वेंस कर रहे थे उसमें अगर आप यहां देखोगे तो ये 2 एक्सेप्शन आपको आएंगे। इसके अलावा नाउ वी हैव डन अप टू 30, एटलीस्ट यू डू अप टू 90। इसी सीक्वेंस से पहले आपको सीक्वेंस भी पता है और आपको जैसा अपना समझ में आया है अभी तक का जितना, उसके अकॉर्डिंग चारों रूल को ध्यान में रखते हुए अफवा प्रिंसिपल पहले कम एनर्जी वाले में जाएगा, एनर्जी n प्लस एल से देखोगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, स्पिन अपोजिट होगी, और डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो पहले सिंगली ऑक्युपाइड करोगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। इन रूल को माइंड में रखते हुए एनर्जी के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6, इन D 10 एंड इन F 14, इसको फॉलो करते हुए आप कम से कम 90 तक, वैसे तो सभी का कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डू अप टू 90। जब आप 90 तक करोगे तो क्या क्या ये सीक्वेंसेस में चेंज आएंगे, एक्सेप्शन क्या होंगे, इनको फिर हम डिस्कस करेंगे विद रीजन। तो टुडेज टॉपिक वी स्टॉप हियर एंड दिस इज फॉर यू। डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन by following this rule up to 19, and it is better if you do up to 118. You find many exceptions, then these exceptions we explain with reason, with their observation. बल्कि जबकि कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनका अभी इतना पता भी नहीं है, क्योंकि टोटल हम 118 कह रहे हैं, ये सारे नेचुरल एलिमेंट नहीं है, 90 के लगभग ही नेचुरल एलिमेंट है, बाकी तो फिर आर्टिफिशियल है, ट्रांसजेनिक एलिमेंट है, लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये करना है कि अपने जो रूल हमने अभी जो बनाए हैं उन रूल के अकॉर्डिंग आप 118 तक कर लीजिए और फिर खुद देखिए कि कहां पे एक्सेप्शन आते हैं, फिर हम करेंगे कि उन एक्सेप्शन का रीजन क्या है। थैंक यू।